حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. أطيعوا لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك يا حجاب زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الله. اللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم عجل لوليك الفرج. السلام علیکم. اس طریقے سے آپ جانتے ہیں یہ ہمارا پروگرام دنیا کا واحد پروگرام ہے اور واحد چینل ہے جو اردو زبان میں جاری ساری ہے. یہ آپ کی دعائیں ہیں. اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ جادو ٹی وی، راکو ٹی وی، امیزون ٹی وی، فائبر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور پلیٹ فارم ٹی وی کے ذریعے سے بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ کو معلوم ہے ہمارا ہدف مقصد رضا اہل بیت علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا ہے. اس وسیلے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اس کی معرفت ہمارے لیے اہم المہمات ہے. اسی مہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان علماء موجود ہے. آئیے ہم ان سے اظہار تشکر کرتے ہیں اور ان کی شمولیت کا شکریہ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ نے اپنے قیمتی ترین وقت میں سے وقت عنایت فرمایا. خداوند متعال آپ کا سایہ اس امت پر قائم ہوتا ہے. شکریہ. سلامت رہیے. جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ کربلا ہے، شب جمعہ بھی آ رہی ہے اور زیارت کا موقع ہے. ایک عجیب دل اٹھانے والا ماحول ہے جو کہ نصیبوں سے میسر آتا ہے. شب جمعہ انسان اپنے وطن میں بھی کھڑا ہو کے آنکھوں میں آنسو لا کے کربلا کو یاد کرتا ہے. جو کہ کربلا میں پہنچ جائے اس کی کیفیت نہ جانے کیسی ہوتی ہے یہ دیکھنے والے خود محسوس کر سکتے ہیں. اسی موضوع کے اوپر چاہوں گا کہ آج آپ کی لطیفائی ہو اپنا تعارف بھی فرما دیجیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا حقیر سید صدق محمد رضوی ہوں اور سرزمین لکھنؤ سے زمین ادب جسے جس نام سے یاد کیا جاتا ہے اسی گلستان کا بہرحال ایک ادنا سے پھول ہوں اور مشہد المقدس میں زیر تعلیم اس سرزمین پر مولا نے قسمت کیا اپنی بارگاہ میں. آج شکر گزار ہوں اس حسین کا کہ جس کی دنیا عاشق ہے، جس کی نگاہیں دنیا کی رکی ہوئی ہیں. آج اس مولا نے کرم کیا اور احسان کیا اس بارگاہ میں اور وہ بھی شب جمعہ حضور کا شرف ملا ہے. پر اپنی بات یہیں سے ذرا سے میں آگے بڑھانا چاہوں گا. آغاز یہ کرنا چاہوں گا کہ بہت مشہور اور
मारूफ एक हदीस भी है कि जो काबिल ज़ियारत के अंदर भी नकल की गई है, दीगर किताबों में भी उलमा ने नकल किया है हमारे और आपके छठे आका से मौलाना मुज़फ़्फ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से कि मौला फरमाते हैं कि हक़ अलल गनी अन याति क़ब्र अल हुसैन अलैहिस्सलाम फी सनति मर्रतैन व हक़ अलल फ़क़राए अन याति फी सनति मर्रतैन। बहुत प्यारी हदीस है कि मौला फरमाते हैं कि मेरा हक या मेरे जद का हक उन लोगों पर जो कि गनी है, जिन्हें अल्लाह ने दिया है, जिनको माल-ओ-ज़र दिया गया है, कम से कम साल में 2 मरतबा आका हुसैन की ज़ियारत की है। और पहले तो उनके लिए हो गया कि जिनके पास है। अब बहुत से लोग हैं जो नादार हैं, जिनके पास नहीं, वो कहेंगे, शिकवा करेंगे मेरे पास तो नहीं है। जिनके पास है वो लोग तो जा सकते, लेकिन हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो उस वक्त हदीस आगे बढ़ी, मौलाना ने फरमाया कि वो शख्स जिसके पास नहीं है, जो नादार है, कम से कम साल में 1 मरतबा जाए। बहरहाल हुज्जत तमाम हो गई। अब यहाँ पर यह है कि ये कहना कि पैसा इंसान को जगह नहीं लेकर आएगा, पैसा यहाँ इंसान को खींच के नहीं लाता है। बहुत दुनिया में एक से एक माल-ओ-ज़र रखने वाले, एक से एक पैसे रखने वाले बैठे हैं, आए और चले गए, लेकिन वो इंसान की जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसे हुसैन तलब कर लेते हैं। यहाँ तलब चाहिए, इनकी तरफ से बुलावा चाहिए, जिसको चाहिए उसे बुला के शुक्र अदा करते हैं इस मासूम का, इस मौला का, कि जिन्होंने कदमबोसी का ये शरफ दिया है कि ज़मीन करबला पर ये खाकसार के कदम पड़े, ज़मीन करबला पर कि जहाँ फरिश्तों का नज़ूल होता है, ज़मीन करबला कि जिस जगह हम जैसे आसी अगर यहाँ आ जाएं तो शायद ही बाइसे शरफ होगा। और मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन लहजात में से होगा कि ज़मीन करबला पे इस जैसा गुनहगार इंसान भी आ सकता है। पर इनका एहसानमंद हूँ, इनका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपनी बारगाह में हुजूर का शरफ दिया, और वो भी शब जुमा में कि जब तमाम मासूमीन और तमाम आइम्मा इस जगह पर मौजूद रहते हैं। थोड़ा सा अपना अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहिए। आपने जिस जिक्र में अर्ज़ किया, कायनात का कीमती तरीन वक्त है जो आप यहाँ पर सर्व कर रहे हैं, और करबला में, और दूसरा मारिफ जो कहते हैं इस्लाम में कसर हुआ वक्त इबादतों का ताज है। अपना तारुफ ही कराइए, और इसी मौजू को जो सैयद साहब ने शुरू किया उससे आगे थोड़ा सा वक्त दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा हक़ीर मुफ्ता हुसैन खोजानी बम्बई से ताल्लुक़ रखता हूँ, और हुक्म में और मशहद में इल्म हासिल करने के बाद चंद साल मडागास्कर और फ्रांस में खिदमत अंजाम दे चुका हूँ। अभी बॉम्बे में मुक़ीम हूँ। जैसे कि अभी आका साहब ने बयान फरमाया कि शब जुमा के सिलसिले में और इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के सिलसिले में, इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के सिलसिले में शब जुमा, जैसे कि जब भी हम लोग यहाँ पर आके कोशिश करता हूँ कि एक शब जुमा ज़रूर ब ज़रूर करबला में गुजारूँ। और क्योंकि रिवायत में जो वारिद हुआ है कि शब जुमा में तमाम आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम, यहाँ तक कि तमाम अम्बिया शब जुमा, तमाम सब अम्बिया और आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ज़ियारत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया था। और जैसे कि वो जो मशहूर वाक़या अब्बास माज़िंदरानी का, कि अब्बास माज़िंदरानी जब अपने वतन से पैदल चल कर आए थे, और उन्होंने आकर यहाँ पर इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए के सामने आकर शब जुमा में जनाब अली अकबर की मसाइल पढ़े। तो उस वक्त इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके ख्वाब में आते हैं, खुद उनको मिलने जाते हैं। वो कहते हैं कि आए अब्बास माज़िंदरानी, जब भी शब जुमा अगर हमारी कब्र के पास आना नसीब हो तो कोशिश करना कि हज़रत जनाब अली अकबर के मसाइल न पढ़ो, क्योंकि शब जुमा खुद मेरी माँ फातिमा ज़हरा खुद हमारी ज़ियारत के लिए आती है। तो ये हमें शरफ और एक बेहतरीन मौका मिला। हम शुक्र अदा करते हैं इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उन्होंने इस गुनहगार, इस हक़ीर नाचिज़ को ये मौका दिया कि हम शब जुमा को यहाँ पर करबला में गुजार सकें। इसी मौके को आगे बढ़ाते हैं, काफ़ी सारी बातें जो कि हम अक़ीदे में हिस्स करते हैं और हमारी ज़ात के ऊपर असरअंदाज है, वो बातें
इश्काल करके उनको कम रंग करना चाहते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो लोगों के दिल थोड़े से मुतज़ल्ज़ल हो जाते हैं, वो दिक्कत कम हो जाती है, या वो फजीलत या अहले बैत की अकीदत में कमी का सबब पड़ते हैं। तो ऐसे अल्फाज अदा करना किस माने में रहता है, ख्वाब और तहकीकी ही क्यों ना हो, किस माने में रहता है? बहरहाल बहुत बेहतरीन चीज़ की तरफ आपने इशारा किया कि इसमें बहरहाल बहुत सी साजिशें भी चल रही इन सब चीज़ों पर, कि आज़ादारी को कम रंग कर देना और अहले बैत के जो जिक्र हैं फ़ज़ाइल और मसाइल को भी कम कर देना। बहरहाल मुतअद्दिद किताबें, बेहपनाह किताबें और बेहपनाह हदीसें, हम शिया हम सुन्नी दोनों से, हर किसी से, यानी क़िबला भी मौजूद हैं, तायद कर सकते हैं इस चीज़ की, या आप भी इसकी तायद करेंगे कि मुतअद्दिद हदीसें यहाँ पर मौजूद हैं कि जो ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, मसाइब व फ़ज़ाइल के ज़िक्र के लिए, खुसूसन आका हुसैन के मसाइब के लिए, ये छठे आका की भी हदीस है, दीगर मासूमीन के आखिरी मौला की भी हदीस मौजूद है कि ये एक ऐसा जिक्र है कि जिसमें रिया जायज़ है, यानी खुदावंद आलम ने किसी जिक्र के लिए रिया नहीं करी है, हर जिक्र के लिए जी तबाका जो यहाँ लाया गया है, यानी कोई ऐसा जिक्र या कोई ऐसा फ़ियल नहीं मिलता कि जिसमें रिया की इजाजत दी गई है। लेकिन ये यहाँ पर कह रहे हैं कि छठे इमाम की हदीस है कि तबाकी करना, यानी रोना नहीं, अगर इंसान को रोना नहीं आ रहा कोई बात नहीं, रोना नहीं आ रहा, कम से कम रोने वाले की सूरत बनाना, रोने वाले का चेहरा बना, खुदा उस पर भी अजर दे रहा है, यानी वो चेहरा खाली रोने जैसा अगर बना ले तो परवरदिगार जिबरसा के इंसान के आश्क निकल आए, और वो आश्क निकाले, क्या उसका रुतबा होगा, क्या उसका मर्तबा होगा। पर ज़ियारतों पे और भी साजिशें इस साल भी बहरहाल आपकी निगाहों के सामने है कि कमरंग करने के लिए, कि इधर लोग ना जाएं, ज़ियारतों पे ना जाएं। आका हुसैन के बारगाह में माशाल्लाह हर रोज दिन ब दिन इसी तरीके से लोग बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप जगह जगह पे बहरहाल सुन रहे हैं कि करबला के हालात खराब हैं, क्या खराब, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बैठे ज़ायरीन का कुछ है रखने की जगह नहीं है हरम के अंदर, ये अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का लाख लाख शुक्र है। देखा होगा आपने, हम लोग ने सुबह ज़ियारत के लिए गए थे क़िबला, और उसके बाद अभी दोपहर में हम लोग ज़ियारत के लिए गए, देख कर आके खुल गई कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़ायरीन यहाँ पर आए हैं। कहते अगर ज़ायर ना भी हो, अल्लाह फरिश्तों को आसमान से ज़मीन पर हुसैन का ज़ायर बनाकर भेज दिया करता है। शरफ है उसको जो इस बारगाह में आ जाए और इस्तकबाल हुकूमतें जितना भी चाहें रोकना चाहें या गलत अफवाहें उठाकर कि ज़मीन पर न जाया जाए, कभी न ये रुका है न रुकने वाला है। बहरहाल वो दौर भी याद आता है कि जिस जमाने में लोग ज़ियारतों को आया करते थे। आज तो माशाल्लाह बड़ा आराम, बड़ा अच्छा हो गया, सब ज़ियारतों पे सब आ रहे हैं, तरह तरह की सहूलतें मौजूद हैं। वो ज़माना भी याद आता है कि जब लोग अपने हाथ, पैर, सर और गर्दन कटा के आया करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी शान और शौकत से लोग आते थे, न कोई किसी डर न किसी खौफ से। आज भी माशाल्लाह उसी तरीके से ज़ायरीन आ रहे हैं। ज़ायरीन से एक और इल्तिजा मेरी है, एक और इल्तिजा मेरी ज़मीन से। मेरा इस वक्त लोग ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग शाहिद हैं, अपनी निगाहों के खुद देख रहे हैं कि ज़ायरीन जो इस वक्त डरे हुए हैं कि मौला की ज़ियारत के लिए ना जाया जाए, वहाँ बहुत अच्छे हालात हैं माशाल्लाह। इससे और अच्छे क्या हालात होंगे कि बेहतरीन तरीके से ज़ियारतें हो रही हैं। हाँ, ये आजर छीनने की कोशिशें लोग ज़रूर कर रहे हैं कि उस तरफ तवज्जो ना दी जाए। कि एक हदीस बहरहाल यहाँ पे मैंने याददाश्त की थी कि क्या सवाब है इमाम हुसैन की ज़ियारत का, कि आका हुसैन की जो ज़ियारत के लिए आए जाए। चंद तरीके से लोग आते हैं, मतलब बहुत से लोग हैं कि पैदल चल के आते हैं, बहुत से लोग हैं कि जहाज से आते हैं, बहुत से लोग दूसरी सवारियों से आते हैं। हर किसी का एक अलग अलग आजर है। यहाँ पे एक हदीस है बहरहाल जो कामिल ज़ियारत के अंदर भी है और दीगर किताबों के अंदर भी इसको नकल किया गया है कि हदीस छठे आका से यहाँ पर है। मौला फरमाते हैं कि मन अता क़ब्र अल हुसैन अलैहिस्सलाम माशियन कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि क़दमिन यरफ़अहा व यज़अहा इत्क़ रक़बतिन मिन नस्ल इस्माईल। बहुत प्यारी हदीस है कि जो शख्स भी आका हुसैन की ज़ियारत के लिए आए, मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए आए, माशियन चल के, बहुत से लोग दूर से चल के आते हैं, मौला कहेंगे मौला हम तो नहीं चल के आ सकते, जरूरी नहीं कि आप किलोमीटरों के हिसाब से, चंद कदम ही सही। जो शख्स माशियन से मुराद यहाँ दोनों चीजें आ जाएंगी, हम पैदल चल के आना या चाहे जिस तरह सवारे पे आना। तो उस वक्त मौला फरमाते हैं कि जो शख्स भी मेरे जद हुसैन की ज़ियारत के लिए आए, मेरे जद की ज़ियारत के लिए आए, कतबल्लाहु लहू, खुदावंद आलम लिखता है उसके लिए हर कदम पर, हर कदम जो जमीन पर पड़ रहा है, वो कदम जो जमीन से उठ रहा है, वो कदम जो जमीन पर गिर रहा है, हर कदम पर नस्ल इस्माइल से एक बंदे को आजाद करने का सवाब। कितना अजर है, कितना सवाब है।
बहुत हदीसें इस जगह के लिए, इस अजर को बहरहाल इसी अजर को आगे बढ़ाने के लिए हम शामिल करते हैं भाई को जी, जी। कि ये जो अजर इतने सारे बयान हुए हमारे साथ काफ़ी मरतबा हदीसों में आया कि कहा गया कि वो जिस तरीके से एक हदीस जो उम्मुल मोमिनीन के साथ भी लिखी बयान की गई है कि 1 हज 2 हज 3 हज 10 हज 70 हज तक पहुँचे तो खामोशी का इजहार हुआ। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार किया कि आखिर तक सवाल करती रहती, सवाल बढ़ता रहता। ये तादाद किस हिसाब से है? क्या ये बयान में तादाद है या फजीलतों के इजहार का तादाद है, या इसके अंदर ये बयान किया गया है कि जितना इखलास जितना गुड़ उतना मीठा? क्या हिसाब है? समझ में नहीं देखिए कि जितना आप दूध में शक्कर डालेंगे उतने ज़्यादा वो मिठास मिलेगी इसमें। तो ये तादाद जो रसूल खुदा ने बयान फरमाया इसमें कि उम्मुल मोमिनीन सामने बैठी थी और रसूल खुदा ने हदीस को बयान फरमाया कि ये हमारा नवाज साद इमाम हुसैन इस्लाम है, अगर कोई इसकी ज़ियारत की दे जाएगा, उसके कब्र की ज़ियारत अगर कोई करेगा तो उसको खुदावंद ताला एक हज एक उम्रा और एक शहीद का सवाब अता करेगा। तो उम्मुल मोमिनीन ने उस वक्त ताज्जुब से फरमाया कि या रसूलल्लाह एक हज एक उम्रा एक शहीद का सवाब। तो जितना ताज्जुब किया गया उस पर रसूल खुदा और उन पर आगे बढ़ते गए, एक की बजाय 2 कहा, 2 की बजाय 3 कहा, 3 की बजाय 4 कहा, यहाँ तक कि 70 जो हमें वफद गिरान के अंदर ये रिवायत मिलती है, 70 हज तक 70 उम्रा तक 70 शहीदों तक पहुंचे। तो उस वक्त खामोश हो गई रसूल खुदा ने फरमाया कि अगर आप इससे भी अगर ज़्यादा ताज्जुब करती तो जब तक आप ताज्जुब करती जाती तब तक मैं इसको इसके सवाब को इसके अजर को मैं बढ़ाता जाता, क्योंकि इमाम हुसैन सल्लल्लाहु ने वो कुर्बानी दी है जो आज तक किसी बशरियत में आज तक किसी कुर्बानी मिसाल नहीं मिलती कि जो इमाम हुसैन सल्लल्लाहु ने दीन इस्लाम को बचाने के लिए और शरीयत मोहम्मदी को बचाने के लिए जो इमाम हुसैन सल्लल्लाहु ने कुर्बानी दी है, आज तक किसी ने इसे कुर्बानी नहीं दी। और बेशक उनका सवाब भी जो इमाम हुसैन की ज़ात करेगा उसका सवाब अजर अजीम। तो जो हम तक जो पहुंचा है वो तो बहुत मामूली पहुंचा है, लेकिन जो खुदावंद ताला के नज़दीक में है वो हम हिसाब भी नहीं कर सकते और अपने गुमान पे भी नहीं ला सकते कितना खुदावंद ताला ने उसका अजर सवाब रखा हुआ है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है, ना उसकी मिसल है ना मसल है। ना मिसल, मिसल बिल्कुल। हकीकत में होती है, मसल जो होती है सिफात में होती है। ना सिफात में ऐसी कोई आशा की कोई ना इमाम हुसैन जैसा हो सकता है, ना उनकी सिफात में ना उनकी जात में कोई जैसा नहीं हो सकता। हाथ के 4 मासूम ही में भी हुसैन नहीं थे। इसी मौजू के तहत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात शब जुमा यहाँ पे आने के बाद हमारे एहसासात क्या होने चाहिए? बहरहाल शब जुमा में इस ज़मीन पर पहुँचने के बाद जो इंसान को सबसे बड़ा एहसास ये होना चाहिए कि ज़माने के इमाम के साथ वो हाजिर हुआ है। इससे बढ़कर उसकी ज़िंदगी का क्या शरफ होगा। जैसा कि बिरादर ने भी बताया कि शब जुमा बहरहाल यहाँ पर तमाम मासूमीन मौजूद हैं, सारे मासूमीन इस जगह पे आते हैं, शब जुमा मौजूद हैं। खास तौर से शहजादी कौनैन के लिए कि शहजादी कौनैन इस जगह पर मौजूद रहती है। जब शहजादी मौजूद है, शहजादी के शहजादे इमाम महदी भी मौजूद है, यानी अपनी दादी के साथ अपने जद के पास इस जगह पर आकर मौजूद है। अब यहाँ पर एक तो ज़ियारत हुसैन फजीलत, दूसरे शब जुमा की ज़ियारतों में जो सबसे यानी हफ्तों में सबसे मखसूसी ज़ियारत अगर किसी मासूम की पहली वो शब जुमा है कि जिसका सवाब भी निहायत नकल किया गया है शब जुमा के लिए कि अगर चंद सातें अगर यहाँ पर बेदार रहे, अगर इस जगह पर इबादत करे या चंद सांसें ली जाए तो उसका क्या अजर है, असल फरिश्ते उसको लिख नहीं सकते। तो अल्लाह ने वो जो हमें शरफ दिया इस जगह पर पहुँचने का, इस शब जुमा में हमें और आपको सबको इस वक्त नाजरीन जिस वक्त देख रहे हैं सभी लोगों को जो शरफ दिया इस जगह पे कि हमारे साथ बैठे हैं शब जुमा में और ये प्रोग्राम लाइव देखा जा रहा है, तो इनके साथ मौला हुसैन के बारगाह में चले चलते हैं। आका हुसैन के पास एक सवाल करते हैं, आका से 12 सवाल किया, फिर सवाल करते हैं, मेरे मौला हुसैन आपने हमें बुलाया है, हम सब बैठे हुए इस वक्त, आप लोग भी बैठे हैं, सामने बारगाह मौला नजर आ रही है, सब बैठे साथ में। आका से एक सवाल करते हैं, ये आका हुसैन आपने हम सब को अपने पास बुलाया है, क्यों बुलाया है? सवाल हमें बुलाया है, क्यों बुलाया है? क्यों किसी और को आपने नहीं बुलाया? बहुत से लोग हैं घरों में टीवी खुले होंगे, लोग नहीं देख रहे होंगे। बहुत से लोग हैं कि बहरहाल आए हुए हैं लेकिन इस वक्त इस जमीन पर नहीं पहुंचे, शायद दीगर मासूमीन के पास पहुंचे। हम यहाँ आए, क्यों आए? मगर आपने हमको ही क्यों बुलाया है? क्या देख लिया हमने आपने? कौन सी ऐसी चीज है मगर किसी तकल्लुफ तारुफ? तो मौला कोई ऐसी चीज हमारी नहीं है जो आपको पसंद आ जाए, वो
क्या पसंद आ गया आपको कि जो आपने ऐसी शब में कि जहां फरिश्तों की लाइन लगी हुई है, एक के बाद एक फरिश्ता आने के लिए उसको घंटों लगा जा रहा है इस जगह पहुंचने के लिए, और उसने हमें ऐसे ही आसानी से आने दे दिया अपने हर में चले। शायद मौला कहेंगे कि तुम्हें बुलाया है, तुम लोगों को अपने पास इस वक्त जो हमने हाजिर किया है, तुमसे हमें कुछ लेना है, किसी मकसद के तहत हमने तुमको यहाँ पर बुलाया है। शायद वो हदफ हुसैन यहाँ पर सामने आ रहा हो, मकसद हुसैन वो सामने आ रहा हो कि मौला जिस वक्त मदीने से निकले थे और वो हदफ लेके निकले थे, मकसद लेके कि तुम हमारे पास आए हो, हमारे मिशन को आगे लेकर बढ़ो। वो अम्र बिल मारूफ, वो नहीं अज़मन कर, एक दूसरे की इस्लाह करना, पहले अपनी करना, पहले अपनी करना। के अंदर हमें मासूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत में काफी सारे पहलू मिलते हैं। इन पहलुओं के अंदर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने काफी सारे पहलू इख्तियार किए। शब जुमा की निस्बत से करबला में आने के बाद हमारे ऊपर जो कैफियत तारी होती है, सबसे पहले तो शहादत का जज्बा है, मार्फत है, इसमें मिलाने के बाद मार्फत है, अकीदत है, उनके हक है। हमारे ऊपर आने के बाद यहाँ पे करबला के अंदर शब जुमा के अंदर आप क्या मांगना पसंद करेंगे? सबसे पहली चीज़ जो हम मांगी गई ईमान के पास या खुदा के पास, सबसे पहले कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल का माहौल और आजकल जो दुनिया जो है ना बिल्कुल यानी जुल्म जोर से भर चुकी है, और हम सबसे पहली चीज़ जो ईमान के पास मांगेंगे, ईमान का तलब करेंगे कि महदी आखिर ज़मां का ज़हूर सबसे पहले, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके ज़हूर से ही तमाम की मुसीबतें दूर होगी। जब तक उनका ज़हूर नहीं हो रहा, ये दुनिया जुल्म जोर से और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और जैसे उनका ज़हूर होगा तमाम मुसीबतें, तमाम इंसानियत पे जो है ना वो बिल्कुल यानी उन पर उनकी तमाम मुसीबतें, इमाम के सिर्फ एक ही चीज़ जो मांगनी है शब जुमा में, एक ही ख्वाहिश है कि खुदाया जल्द से जल्द इमाम का ज़हूर फरमा दे, ताकि तमाम लोगों की, फ़कत मुसलमानों की नहीं बल्कि जो गैर मुस्लिम है उन सब की भी मुसीबत सिर्फ इमाम के आने से ही वो सबकी मुसीबत दूर होगी इंशाअल्लाह। यानी शब जुमा की निस्बत से हमारी बात चल रही है, तो शब जुमा के अंदर सहाबा मासूमीन अलैहिस्सलाम, अंबिया, औसिया, औलिया, फरिश्तेगान, यानी गरज ये कि बिनुक्ततिन वाहिदा एक बात कहें कि यानी इंसानों से ज़्यादा मुंतज़िर आसमान से लेके ज़मीन तक सफ दर सफ फरिश्ते खड़े हुए हैं। हमारी क्या औकात, क्या मकाम, पहले बैत अलैहिस्सलाम के करम के अलावा और कोई चीज़ नजर नहीं आती कि वो जो हमें यहाँ पर लेकर है, ना पैसा लेके आता है, ना माल, ना जान, ना सेहत। यहाँ पे देखिए गरीब ज़्यादा है अमीरों की निस्बत, फ़कीर ज़्यादा है मालदारों की निस्बत। यहाँ पे पैदल आने वाले, गाड़ियों पे आने वालों की निस्बत ज़्यादा नजर